हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की साइंस। ये क्लास सिक्स्थ की साइंस की बुक है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, चैप्टर नंबर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। वेरी थिन थ्रेड लाइक स्टैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. Fiber is called तंतु और रेशा in Hindi. Fabric means cloth. Fabric is produced by weaving or knitting. Long twist thread called yarn made for fibers. We use various type of fabrics for making cloth. Our school uniform, shirt, pant, trouser, blouse, skirt, shorts, sari, shawl, blanket, sheets, towels, tablecloth, curtain, duster, etc. are all made from different kind of fabrics. Even bag used for storing food grains are made from a type of fabrics. Fabric मतलब फैब्रिक जो धागे से बना होता है, मतलब कपड़ा हम कई तरह की चीज़ों के यूज़ लेते हैं। और कपड़ा किससे बनता है? धागों से। धागों में जब वीविंग और नीटिंग की प्रोसेस की जाती है तो उसके बाद कपड़ा बनकर तैयार होता है। कपड़ा हम कई चीज़ों के काम में लेते हैं। कपड़े से हमारे कई तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, ड्रेसेस बनाई जाती है, जैसे कि ब्लाउज़, स्कर्ट, हमारी यूनिफॉर्म, हमारी साड़ी, शॉल या हमारे घर में ओढ़ने के ब्लैंकेट वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वे सब कपड़े से ही बनाई जाती है। इफ़ वी गो टू ए क्लॉथ शॉप इन द मार्केट वी की सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक. सम फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन, अदर मेड ऑफ वूल और सिल्क, अदर आर मेड ऑफ सिंथेटिक. The various type of fabric commonly used are such: cotton fabric, woolen fabric, silk fabric, synthetic fabric. We usually wear cotton cloth made of cotton fabric during a hot of summer season. Cold cloth are warm in the cold days of winter. The cloth made of silk fabric is synthetic fiber, most comfortable when the weather neither very hot or very cold. Before we go further, we should know the meaning of this term yarn. Yarn is the spun thread who is used of weaving or knitting fabric. In most simple words, yarn is long thread which is used to making a fabric. Okay, हम कई तरह के क्लॉथ मार्केट में हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वह हमें तरह तरह के क्लॉथ दिखाता है, जैसे कॉटन का कपड़ा, गरम कपड़े, सिल्क के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े। तो कई तरह के कपड़े हम उनके शॉप पे देखते हैं। यार्न जो होता है वो एक तरह का मोटा धागा होता है जिससे कि हम वीविंग और नीटिंग की प्रक्रिया करके हमारा कपड़ा बनाया जाता है। What are fabric made of? Fabric are made of yarn which is a turn made of from fiber that will become more clear from the following discussion. It look at any fabric usually it seem be the continuous object. However, at a piece of fabric closely we will find that the fabric is made of network. Fabric is made of a network of thread going along the length and breadth. Fabric at right angles to the another. See the figure. At right angle to another space figure. अब हम ये जो फिगर दिए हुए हैं इसमें हम देख सकते हैं ये हमें दो तरह के फिगर दिए हुए हैं। ये फैब्रिक है, ये यार्न जो धागा है जिससे कि हमारा फैब्रिक बनाया जा रहा है, और ये फैब्रिक हमारा बनकर तैयार हो रहा है। हम देखते हैं कैसे वीविंग और नीटिंग की प्रोसेसिंग के द्वारा यार्न वाले धागे से याम जो हमारा थ्रेड है, मोटा धागा जिसको कहते हैं याम, उससे हमारा फैब्रिक बनकर तैयार हो रहा है। ओके, लेट अस नाउ फाइंड ए लूज यार्न एट वन ऑफ द एज ऑफ द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड पुल इट आउट विथ आवर हैंड. Yarn visible. We can put out the yarn from the fabric with the help of pin or needle. We can go on pulling more and more yarn for the piece of cotton fabric. In fact, the whole piece of cotton and fabric can be pulled into the large number of pieces of yarn. This show that a piece of cotton fabric or yarn together. In general, we can say that a fabric is made up of yarn woven together. We have just learned that fabric are made of yarn. We now want to know what are these yarn made of. Yarn is made of fibers. This is discussed now. Let us take out the yarn at the piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press the end of the yarn with the
thumb of the left hand and scratch the other end the young yarn along its length with the right of hand द सी द। देखिए मैं आपको ये दो फिगर दिए मैं इसमें बता रही हूँ मैं, जैसे कि हम कॉटन का एक कपड़ा लेते हैं, उसमें नीडल और सुई की सहायता से हम उसको थोड़ा सा कुरेदते हैं, तो हम देखते हैं कि कपड़े में ऐसे स्क्रैच जैसे धागे निकल आते हैं, हमने देखा होगा। हम उसे उधेड़ते हैं तो या नीडल की सहायता से उसको हम जैसे जैसे खोलते हैं तो हम देखते हैं जैसे इस फिगर में दिखाया है, ऐसे थ्रेड हम निकलते गए। अब यार्न किससे बनता है, हम जो ये थ्रेड हमें मोटा वाला दिया हुआ है ये किससे बनता है, तो ये फाइबर्स से बनता है। तो हम इसके बारे में अब नीचे पढ़ते हैं। फाइंड द पीस ऑफ space strand cotton. They show that the cotton yarn where the fabric is made of a still thinner strand of cotton. Thus the thin strand of cotton which make up yarn are called the cotton fiber. This means that cotton fiber is made of cotton yarn which is made from the cotton fiber. For this discussion we include that fiber is made of yarn is made of from fibers. Another way saying this that fiber make of yarn, then the yarn make of fibers cloth. This means that the basic material of making fabrics of fibers. So we now discuss the fiber is somewhat detail. हम देखते हैं कि ये जो धागे निकले हैं वह जो कॉटन का जो कपड़ा बनकर तैयार होता है वो कॉटन के फैब्रिक से बनकर तैयार होता है, यानी कॉटन के धागे से बनकर तैयार होता है। अब ये कॉटन का धागा किससे बनता है, फाइबर से। फाइबर याम में हम देखते हैं कि याम से फाइबर, फाइबर से याम बनता है। तो हम देख सकते हैं कि फाइबर्स किस तरह का होता है और फाइबर से कैसे ये धागा बनता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। We have all seen cotton. We have all seen cotton in our homes. Cotton is white, soft and stuffy material. If we hold piece of cotton between our hand and pull part of, we see a large number of very thin and teeny thread like strand in it. This is small and thin strand are called the cotton fiber. Cotton is collection of a large number of fibers. Thus, cotton is a fibrous material or cotton. Can now define fiber is follow. Fiber are very thin, thread-like standard form which fabric made. Some of the example as fiber are cotton, wool, silk, flax, jute, nylon, polyester, synthetic. The fiber are spun into yarn which then can be woven on the loom wicket fabric. आपने अपने घर में कॉटन देखी होगी। कॉटन बहुत ही नरम, बहुत ही नाजुक सी आपके हाथों में होती है। हमने देखा है, अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 धागे होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे कॉटन के धागों से फाइबर से मिलकर आपका क्लॉथ बनता है, आपका फैब्रिक बनकर तैयार होता है। टाइप ऑफ फाइबर, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट और एनिमल इज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। कलेक्शन ऑफ tiny thread obtained from plant, animal. The fiber cotton, wool, silk, flax and jute. Cotton, flax, jute are the natural fiber obtained from the plant. Wool and silk are the natural fiber obtained from animal. Cotton, flax, jute fiber obtained from the representative plants. Wool is the most obtained from sheep. The sheep's hair combine obtained from the hair of goat, rabbit, yak, camel. Silk fiber obtained from the silkworm. The cocoon of silkworm. हम देखते हैं कि कॉटन द फाइबर जो होता है, जो एनिमल्स और प्लांट से जो बनते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, और जो सिल्क, फ्लैक्स ये होते हैं ये एक तो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि शिप की बालों से जो निकलते हैं, हेयर से जो और गॉड, रैबिट, इनकी, कैमल्स, इनकी जो बाल होते हैं उनसे जो निकलता है वह नेचुरल फाइबर कहलाता है। और सिल्क फाइबर इज़ फ्रॉम सिल्क वार्म। सिल्क वार्म जो होती है वो जो होती है वो कोकन इज़ द सिल्क वार्म स्पन ऑफ द सिल्की वार्म। मतलब ये जो सिल्क वार्म होती है इसी से हम सिल्क फाइबर जो होता है ऑब्टेंड होता है और बनता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ओनली नेचुरल फाइबर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग। मतलब पहले के ज़माने में केवल नेचुरल फाइबर ही यूज़ में लिया जाता था और वही अवेलेबल होता था। बट द लास्ट 100 years so fiber also made up of chemical substance which are obtained from natural source. The fiber which are prepared from chemical substance industry are called the synthetic. मतलब फाइबर में कुछ केमिकल मिला के उन्हें मतलब थोड़ा चेंज करके जो आज से 100 साल लगभग से पहले जो फाइबर बनाया जा रहा है, फैब्रिक हमारे लिए तैयार किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, और उससे हमारे सिंथेटिक कपड़े तैयार होते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ हमें मिलने को मिलते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर,
आदि जो सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक फैब्रिक बनाया जाता है वह कुछ केमिकल बना के बनाया जाता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर are used for making fabric. These fabric are then used to making our dresses and for the domestic purpose like curtain. Synthetic fiber also making the carpets. Synthetic fiber much strong than the cloth made of synthetic fiber longer time. We can distinguish between the wool, silk, synthetic fiber performing burning test also. हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है उससे हमारे घर के पर्दे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक काम में ली जाती है और इन्हें हम काम में लेते हैं। हम देखें इन पर सिंथेटिक चीज़ों पर बर्निंग टेस्ट भी किया गया है। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ फाइबर एंड टेस्ट होल्ड द फैब्रिक पेयर ऑफ टंग एंड एंड ऑफ द फैब्रिक फ्लेम ऑफ बर्नर एंड द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर देन ए कॉटन फैब्रिक डज नॉट मेल्ट फ्रॉम द बीट्स ऑन बर्निंग। मतलब जलने से कॉटन मेल्ट नहीं होता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है या सिंथेटिक फैब्रिक जो हमारा होता है वो बर्न हो जाता है बहुत जल्दी से। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न गिवन स्मेल, और इसमें बहुत तेज़ जलने की स्मेल आती है। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग स्मेल ऑफ चेयर्ड मीट दैन सिल्क फैब्रिक, मतलब इनमें सिल्क में बहुत तेज़ स्मेल आती है, जैसे कि मीट जलने की आती है उसी तरह से इसमें बहुत तेज़ जलने की स्मेल आती है जब सिंथेटिक चीज़ों को जलाया जाता है। इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ जल रही है, इसी तरह की बर्निंग की स्मेल सिंथेटिक चीज़ों में से आती है। सब प्लांट फाइबर लाइक कॉटन फ्लैक्स जस्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द प्लांट फाइबर। डिस्कस ऑल द प्लांट फाइबर मोर डिटेल वन बाय वन। लेट स्टार्ट विथ कॉटन। Cotton is the most widely used natural fiber. Cotton fiber is also known as the cotton wool. Cotton fiber comes from the cotton plants which are grown in the field by the farmer. Cotton crops is usually grown at the place having black soil, warm climate in India. Cotton is mainly grown in the state of Maharashtra, part of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat. The fruit of cotton plants are the size of lemon. After natural cotton balls burst open, the produced cotton seeds covered with the oil. Soft cotton fiber fill the cotton plants which is ready to packing to cotton wool look wild like field cover with the snow. हम देखते हैं कि कॉटन का ये पौधा है, इस पे किस तरह से कॉटन उगी हुई है और फार्मर्स जो होते हैं वो कॉटन की खेती करते हैं और फिर यही कॉटन हमारे पास गिनिंग कर यही कॉटन हमारे पास आ जाती है। ये देखिए कॉटन की खेती हुई है, इस फिगर में हमें बताया हुआ है ये कॉटन उग रही है। Cotton is picked from the plant hand. Cotton picked from the field have cotton seeds. The cotton fiber then spread for the seeds. The process of cotton fiber the seeds of called ginning. गिनिंग की प्रक्रिया करके इन कॉटन्स को यूज़ में लेने लायक बना दिया जाता है। इनमें दिस डेज गिनिंग इनमें देखिए ये गिनिंग वाला हमें फिगर दिखाया गया है, इसमें कॉटन की गिनिंग हो रही है, उसके बाद ही हमारी यूज़ में ली जाती है। Flax is also plant that give natural fiber. The fiber obtained from flax plant is called the flax fiber. Flax, this fiber obtained from the stem flax plant. The flax fiber used from making fiber. The cloth made of stem fiber flax is called linen. Linen is making the bed sheet, etc. Addition cotton flax and the obtained from the making fabric. कॉटन जो फ्लेक्स होता है वह भी एक तरह का पौधा होता है और ये उगा जाता है और ये देखिए इसकी भी खेती की जाती है। उसके बाद ये फ्लेक्स हमें फिगर में बताया गया है। ये हमारी इससे हमें लाइनन का कपड़ा प्राप्त होता है जिससे कि हमारी बेडशीट वगैरह बनाई जाती है। ये जूट फाइबर है और ये कोकोनट फाइबर है, इसकी भी पिक मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ, ये दिखाई दी गई। जूट फाइबर फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट जस्ट ए कॉल्ड Patson in Hindi and India. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, Assam. Just grow is cultivated in the rainy season. ये बरसात के सीज़न में इसकी खेती होती है और जूट उगता है। जूट फाइबर की भी खेती की जाती है। इसकी खेती करके इन्हें कुछ दिनों इसके प्लांट में पानी दिया जाता है, उसके बाद ये उगकर आ जाते हैं। जूट से हमारे हैंडबैग बनाए जाते हैं। ये इसका धागा बहुत मजबूत होता है और जूट से हमारे जो होते हैं हैंडबैग्स, दरियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, हमारे बैग्स बनाए जाते हैं। द अवर कवरिंग द कोकोनट हैज़ ऑल्सो सम फाइबर, दीज आर कॉल्ड कोकोनट फाइबर। द कोकोनट फाइबर यूज़ मेकिंग रोप एंड मेड्स, हमारी चटाइयाँ, हमारे घरों में यूज़ लेने वाली रस्सियाँ और सभी कोकोनट से फाइबर से बनाई जाती है। और जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, इससे हमारे पेपर बनाने के काम में लिया जाता है, इससे हमारे पेपर बनाने की यूज़ में लिया जाता है।
दिस फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर फॉलोइंग 2 स्टेप। फाइबर इज, फिर इससे यान फैब्रिक फर्स्ट कन्वर्ट है। फैब्रिक जो होता है, फाइबर जो होता है, पहले यान में कन्वर्टेड होता है, फिर वीविंग और नीटिंग की प्रोसेस होती है, फिर इससे हमारे धागा बनता है, धागा से हमारे कपड़े बनाने की प्रोसेसिंग होती है और इसे हम यूज़ में लेते हैं। यान फॉर फाइबर। Yarn is made of long twist thread. Yarn is made of fiber. Spinning, the process of spinning fiber, the measure of cotton, draw and tested, bring the fiber together। जैसे हमें फिगर में बताया हुआ है, ये कॉटन है और कॉटन फाइबर है और फिर ये कॉटन यार्न है। इसी में से खींच कर देखिए धीरे धीरे ये कॉटन फाइबर इनके हाथ में और ये कॉटन है, इनकी स्पिनिंग करके इनको कन्वर्ट किया गया है। इस डेमोस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कॉटन यार्न। कॉटन फाइबर फॉलो, होल्ड द लम ऑफ कॉटन फाइबर लेफ्ट एंड सी, स्टार्ट पुलिंग द कॉटन फाइबर जस्ट राइट एंड वाइल इज ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर कंटिन्यूसली वी गेट कॉटन यार्न, नॉट ए फाइन यार्न। यू कैन बी मेड फ्रॉम द फाइबर यूजिंग 3 डिवाइस, हैंड स्पिंडल, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग मशीन। हम किसी भी तरह से इनको धागों को यूज़ में ले सकते हैं। देखिए पहले जो चरखों से जो धागा बनाने की प्रक्रिया थी वो इस्तेमाल में ले सकते हैं, या इस तरह से स्पिंडल से भी धागा बनाने की प्रोसेस की जाती है। ये देखिए पुराने ज़माने में हम देखते हैं गांधी जी के समय में ये चरखा बनाने की प्रोसेसिंग खूब प्रचलित थी, इससे भी धागा बनाया जाता है। और फैब्रिक आर मेड फॉर यार्न, 2 मेन प्रोसेस, वीविंग एंड नीटिंग। फैब्रिक 2 तरीके से वीविंग, ये देखिए वीविंग की प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीविंग की प्रोसेसिंग हो रही है हैंडलूम में एक फ़ाइबर, ये फ़ाइबर बन रहा है या ये हमारे धागे से हमारे वीविंग की प्रोसेसिंग के द्वारा हमारा पूरा फैब्रिक बनाया जा रहा है, फैब्रिक को तैयार किया जा रहा है। इसे हिंदी में करगा कहा जाता है। और हैंडलूम जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है, जैसे हैंडलूम चीज़ें हम देखते हैं ना कि ये हैंडलूम है, तो ये देखिए ये वीविंग की प्रोसेसिंग फिगर नंबर 12 में दिखाई है। ये नीटिंग की प्रोसेसिंग दिखाई गई है फिगर नंबर 12 में। आप भी देखते हैं नीटिंग की प्रोसेसिंग के वूलन से हमारी मम्मियाँ जो स्वेटर वगैरह बुनती है उसे ही नीटिंग की प्रोसेसिंग कहा जाता है, कि नीडल के द्वारा क्लॉथ को बनाना और मजबूत क्लॉथ बनाना, जिससे कि हमारे स्वेटर्स बनाए जाते हैं। आजकल ये काम मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, मशीनों से भी स्वेटर्स बनाए जाते हैं। ये देखिए नीटिंग की ये प्रोसेसिंग हमें दिखाई हुई है। आपने वीविंग और नीटिंग को अच्छी तरह समझ लिया है, वीविंग और नीटिंग को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। दिस डे वी वेयर क्लॉथ मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक इन कवर आवर बॉडी। नो फैब्रिक वेयर आर अवेलेबल इन एंशिएंट टाइम। सो एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड इन बार्क ऑफ ट्री, बिग लीव ऑफ ट्री, एनिमल स्किन, फर्स कवर देम। पहले के ज़माने में कोई कपड़े नहीं होते थे तो लोग एनिमल की स्किन को, बड़ी बड़ी पत्तियों को और फर को अपने आपको ढकने के लिए इस्तेमाल लेते थे। एग्रीकल्चर में लोग सेटल प्लेस नियर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ व्यू ट्विंग एंड ग्रास टू मेक मेड्स बास्केट, वहाँ जो घास होती थी उससे वो बास्केट वगैरह बनाया करते थे। और एनिमल फ्लीस सच ए शीप वूल वर ट्विस्ट टुगेदर फ्रॉम ए लॉन्ग स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड आर वेरी वूवन टू फैब्रिक। अल्टीमेट पीपल स्टैंडर्ड ग्रोविंग कॉटन एंड फ्लेक्स प्लांट ऑब्टेन फाइबर मेकिंग फैब्रिक्स। These crops were grown near source of water like river to get sufficient water for irrigation. For example, the early Indian grew cotton crop in the region near river Ganga to obtain cotton fiber for maybe। पानी के पास वो इसलिए रहते थे कि उनकी जो वीविंग की प्रक्रिया होती थी वो पानी से, जो वो घास से इनसे अपने लिए जो बास्केट वगैरह बनाए जाते थे तो उसमें उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वह आसानी से उनका काम पूरा हो जाता था। In those days, stitching fabric in cloth and make cloth like shirts, pant was not known. Just to drop the fabric around different body parts, cover themselves. After the needle, people started stitching fabric to make different type of cloth. In the beginning of hand stitching, but the day sewing machine are used to for quick stitching। आजकल हम देखते हैं कि वीविंग और नीटिंग को कम यूज़ लिया जाता है। आजकल जो है सिलाई की मशीनों का ज़्यादा उपयोग है। सिलाई की मशीनों की सहायता से, नीडल की सहायता से ही शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज़, लुंगी, टार्बर, हर तरह की पोशाक हमारे लिए बनाई जाती है। और हम आज हर तरह के फैब्रिक को यूज़ करते हैं और हर तरह की पोशाक को हर दिन पहनते हैं। तो ठीक है, अब हम नीचे के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आज हम केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है और चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था आपका। तो मैं चाहूँगी हम क्वेश्चन आंसर कल दूसरे वीडियो में करें। आज आप केवल चैप्टर समझें और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको